I'm sure that a lot of you who are preparing for the ZAT wondering what the negative marking scheme looks like exactly, because there is a lot of confusion in terms of unattempted questions, consecutive unattempted questions, and so on and so forth. So एक बार देख लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग स्कीम होती क्या है ZAT की. Now ZAT की negative marking scheme is fairly straightforward because there are 5 options that are there for every question. For every correct answer you will get 1 mark, and for every incorrect answer you are going to get 0.25 marks की penalty. इसका मतलब यह है that let's say for example you attempt only 5 questions and there are 5 questions in the test. You get 1 correct, 4 wrong, your net effective score is going to be equal to 0. But जब unattempted questions की बारी आती है तब ZAT has this policy wherein beyond 8 consecutive or 8 successive unattempted questions -0.1 की penalty बैठेगी for every question that you leave unattempted. तो अब example लेके देखते हैं कि what exactly does this mean. Now the first thing you have to understand is एक assumption ले लेते हैं 75 marks की test है and we are assuming that there are 28 questions in the QADI section, 21 questions in the decision making section and 26 questions in the VALR section. अब let's say for example hypothetically हमने 40 attempts किए across the 3 sections and let's say that हमारे 30 correct आ गए. Now what will happen because of this? अब 30 correct है तो मुझे plus 30 मिलेंगे उसके because I get 1 mark for every correct answer that I would have submitted. अगर मैंने 10 गलत आंसर्स मार्क किए तो मुझे कितने गलत मिलेंगे? 10 into 1 by 4, that is 2.5 marks की penalty मिलेगी, which means minus 2.5 is the contribution of the incorrect answers that I would have submitted. अब 35 क्वेश्चंस बचे अनअटेम्प्टेड बिकॉज 75 क्वेश्चंस हैं एंड 40 अटेम्प्ट्स आई हैव ऑलरेडी मेड. सो 35 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं. नाउ व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस? 8 क्वेश्चंस पे एक वेव ऑफ मिल जाता है कि 8 क्वेश्चंस से कोई तुमको बॉदर नहीं करेगा वेदर यू हैव अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड और एनीथिंग, तो वहां पे कोई इशू नहीं है. बट फॉर द रिमेनिंग 27 क्वेश्चंस दैट एग्जिस्ट, हर एक क्वेश्चन के लिए 0.1 मार्क्स पर क्वेश्चन की एक पेनल्टी बैठेगी, which essentially means that 27 into 0.1 या 2.7 marks की penalty बैठेगी because of unattempted questions. So मेरा net score कितना हो जाएगा? 30 positive because I've got 30 right answers, 2.5 का negative because I have got 10 incorrect answers which are graded at a rate of 0.25 marks per question. एंड लास्ट में जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है बियॉन्ड 8, तो 8 तक अपने को पूरा का पूरा वेवर मिल जाता है. इट्स बेसिकली लाइक अ टैक्स स्लैब दैट यू हैव. 8 तक नोबडी इज गोइंग टू बॉदर यू. But beyond 8, what is going to happen is that every incorrect question is going to invite a penalty of 0.1 marks. तो मेरा इफेक्टिव स्कोर कितना बनेगा? 30 minus 2.5 minus 2.7. तो मेरा स्कोर बनेगा 24.8. So although you might think that 30 करेक्ट है and 2.5 का नेगेटिव आ भी रहा है तो भी 27.5 स्कोर बनेगा. That would have happened maybe in case of exams like the CAT. But that के अंदर ये चीज नहीं होती. You also incur a penalty for unattempted questions which will add another 2.7 का डेफिसिट टू योर स्कोर. तो 24.8 स्कोर आ रहा है. अब ये रिफ्लेक्ट कैसे करता है मार्कशीट के अंदर? बिकॉज मार्कशीट में ऐसे नहीं करेंगे कि तीनों सेक्शंस दे दिए और फाइनली 2.7 को माइनस कर दिया. दैट इज नॉट व्हाट दे आर गोइंग टू डू. दे विल डिडक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शंस. तो वो कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. जितना उस सेक्शन का वेटेज है एट दी जैट, सो जैट के अंदर क्यूएडीआई का वेटेज लेट्स से फॉर एग्जांपल 28 क्वेश्चंस है आउट ऑफ द 75 क्वेश्चंस. तो जो नेगेटिव मार्किंग है ना उसको भी 28/75 के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फॉर द क्यूएडीआई सेक्शन. अब लेट्स सी इसको एग्जांपल लेके देखते हैं. सेम एग्जांपल लेते हैं. 40 करेक्ट 40 अटेम्प्ट सॉरी 30 करेक्ट 10 रॉन्ग. तो प्रीवियस केस के अंदर लेट्स अगेन अज्यूम दैट क्यूए के अंदर मैंने 12 अटेम्प्ट्स किए थे जिसमें से 10 करेक्ट थे, 2 गलत हो गए मेरे. ठीक है, कोई बात नहीं. नाउ आई वुड हैव गॉट व्हाट स्कोर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस 12 अटेम्प्ट्स, 12 करेक्ट और 10 करेक्ट में 10 मार्क्स मिलेंगे. एंड 2 इनकरेक्ट हुए ना तो वहां पे मेरे जाएंगे 0.5 मार्क्स. तो मुझे कितने मिलेंगे? 9.5 मार्क्स इन द क्यूएडीआई सेक्शन. अगर मैं वीएलआर की बात करूं, लेट्स से मैंने 18 अटेम्प्ट्स कर दिए इन दिस सेक्शन आउट ऑफ द 26 क्वेश्चंस दैट वेयर देयर. उसमें से 12 करेक्ट हो गए, 6 गलत हो गए. अब 6 गलत हो गए तो वहां पे 1.5 मार्क्स मेरे चले जाएंगे. तो 12 में से 1.5 चले जाते हैं एंड मेरे पास बचते हैं 10.5 मार्क्स. उसके बाद डिसीजन मेकिंग सेक्शन के अंदर लेट्स से आई हैव अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चंस जिसमें से आई हैव गॉट 8 करेक्ट. इसका मतलब मेरे 2 गलत हो गए. तो 0.25 into 2 या 0.5 मार्क्स मेरे डिडक्ट हो जाएंगे. So 8 correct will give you 8 marks minus 0.5 is going to give you 7.5 marks. अब ये सब मिला के मेरा स्कोर जो हो जाता है वो कितना होता है? 27.5 जो मैं पहले बता रहा था. बट अनअटेम्प्टेड की पेनल्टी भी तो है मेरे पास. सो जो 2.7 मार्क्स की पेनल्टी थी ना उसको हम लोग डिवाइड करेंगे सेक्शंस के वेट के हिसाब से. सो एज आई हैड मेंशन्ड अर्लियर, क्यूएडीआई का वेट कितना होगा? 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75. तो उसको भी उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड किया जाएगा.
सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो 2.7 होगा उसको 28/75 से मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू -1.008. नाउ टिपिकली दैट विल राउंड इट अप टू 2 decimals, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस -1.008 ऐसे इसको लिखते हैं. Similarly, if you look at the second section, which is the VALR section, तो -2.7 जो इफेक्टिव पेनल्टी थी मेरी, उसमें 26 आउट ऑफ 75 का प्रोपोर्शन इज फॉर द VALR सेक्शन, बिकॉज VALR का कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एंटायर टेस्ट वॉज 26/75. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.936 होगा या -0.94 इसको अज्यूम कर सकते हैं. सिमिलरली डिसीजन मेकिंग के अंदर -2.7 इंटू 21/75 मुझे मिलेगा यहाँ पे, विच विल रिजल्ट इन अ नेगेटिव ऑफ 0.756. तो अब टोटल मेरे नेगेटिव कितने हो गए यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो, या फिर टोटल स्कोर को कैसे इंपैक्ट होगा वो अगर देखते हैं. सो क्यूएडीआई में इंस्टेड ऑफ गेटिंग 9.5 मार्क्स, आई एम गोइंग टू गेट 9.5 माइनस 1.008, दैट इज 8.492. सो 8.49 यहाँ पे पकड़ के चल लो. जैट की मार्कशीट के अंदर जनरली वो परसेंटेज के हिसाब से तुमको स्कोर देंगे. दे विल नॉट टॉक अबाउट 8.492 दैट. They will say that okay, in QADI you have scored 8.492 out of say 28 marks. तो उसमें तुम्हारा जो परसेंटेज होगा अप्रोक्सीमेटली कुछ 27-28% होगा. दैट इज बेसिकली गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्कोर कार्ड. सेकंड सेक्शन की बात करेंगे VALR की, 10.5 मुझे मिलने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव और अनअटेम्प्टेड की पेनल्टी जो मुझे मिल रही है, जो मुझे एक्स्ट्रा नेगेटिव दे रही है, दैट इज गोइंग टू गिव मी 9.564 एज माई इफेक्टिव स्कोर. डीएम में भी मेरा 6.744 स्कोर आ जाएगा. और अब इन तीनों को ऐड करोगे तो हमको मिलता है हमारा मैजिक नंबर विच इज 24.8, जो हमको फर्स्ट टाइम में मिल गया था. सो दैट इज बेसिकली हाउ योर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की नेगेटिव पेनल्टी विल गेट इंटीग्रेटेड इनटू योर फाइनल स्कोर. और जो फाइनल जो स्कोर कार्ड होगा वहां पे क्या मिलेगा अपने को, क्यूएडीआई के अंदर 8.492 डिवाइडेड बाय 28, तो कितने परसेंटेज बनते हैं, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी रिटन देयर. VALR के अंदर 9.564 डिवाइडेड बाय 26, तो कुछ भी नंबर हो सकता है वो. इट कुड बी समथिंग लाइक अ 35% काइंड ऑफ अ थिंग, ऐसा हो सकता है. डीएम के अंदर 6.744 विच विल बी रफली से 25 और 27%, ऐसे कुछ नंबर वहां पे दिखाई देगा. नाउ व्हाट डज दिस मीन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट? शुड यू बी वरीड अबाउट अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस? क्या सारे अटेम्प्ट करके आ जाना चाहिए जैसे बहुत लोग बोलते हैं? आई विल से दैट बिल्कुल ऐसे मत करना. जज दी टेस्ट एंटायरली ऑन इट्स मेरिट. जस्ट बिकॉज अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को लेके थोड़ी नेगेटिविटी है, डजंट मीन दैट यू गो एंड अटेम्प्ट देम एंड गेट देम रॉन्ग. बिकॉज इफ यू लीव समथिंग अनअटेम्प्टेड, देयर इज अ चांस दैट यू माइट लूज 0.1 मार्क्स. बट अगर तुमने क्वेश्चन को गलत कर दिया, देयर इज अ सर्टेनिटी दैट यू आर गोइंग टू लूज 0.25 मार्क्स. तो यहाँ पे 0.25 तो मेरे ज्यादा मार्क्स जा रहे हैं ना अगर मैं गलत करूं तो. सो आंसर क्वेश्चंस ओनली इफ यू आर सुप्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वेश्चंस. अदरवाइज ज्यादा उसके अंदर मत दिमाग लगाना कि क्या करना चाहिए अनअटेम्प्टेड के साथ. सो डोंट बॉदर अबाउट द अटेम्प्ट. बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है. लेट गो ऑफ ऑल योर फियर्स रिगार्डिंग हाउ मेनी टू अटेम्प्ट. अटेम्प्ट व्हाटएवर यू कैन, अटेम्प्ट व्हाटएवर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू सॉल्व द टेस्ट ऑर्गेनिकली एंड कीप योर एक्यूरेसी हाई. तो क्या इसकी बात, क्या इसका मतलब ये है दैट बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए जो भी सर्टेन नहीं है? बिल्कुल करने चाहिए, बट उसका एक तरीका होता है, उसकी एक जगह होती है. आई वुड हैव डिस्कस दिस इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इन टर्म्स ऑफ दी ज़ैट. सो वो वाला वीडियो एक बार देख लेना. एंड यहाँ पे आई विल सजेस्ट दैट ओनली इफ यू आर रीजनेबली सर्टन ऑफ ओवर अचीविंग योर टारगेट, देन यू कैन थिंक अबाउट गैम्बलिंग, विच एसेंशियली मीन्स दैट लेट्स से मेरा पर्सनल टारगेट है ज़ैट के अंदर टू स्कोर 32 मार्क्स. अब मैंने अटेम्प्ट ऐसे किया हुआ है दैट आई एम ऑलमोस्ट श्योर ऑफ गेटिंग अ 35 और 36 का स्कोर, बट मेरा ड्रीम तो 32 का था. तो मेरे पास 4 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं. अब वो 4 एक्स्ट्रा मार्क्स अगर मेरे पास है, मैंने आंख बंद करके अगर 16 क्वेश्चंस में भी तुक्के मार दिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेसिंग ब्लाइंडली, बट इवन इफ यू गेस ब्लाइंडली द रिमेनिंग 16 क्वेश्चंस और 16 अदर 16 क्वेश्चंस रादर, तो वहां पे अगर सारे के सारे भी गलत होते हैं तो भी यू आर फॉलिंग टू योर ड्रीम स्कोर. तो यहाँ पे आई विल सजेस्ट दैट इफ यू आर लुकिंग एट 35-36 का स्कोर एंड योर एम वाज 32 इन द फर्स्ट प्लेस, यू थिंक दैट 32 इज गोइंग टू बी डिसेंट इनफ, आई विल सजेस्ट दैट यू काइंड ऑफ टेक अ शॉट एट द क्वेश्चंस जहां पे 50-50 चांस है, जहां पे 2 ऑप्शंस के अंदर यू हैव रीच्ड एंड वहां पे यू हैव टू फिगर आउट कि बेटर ऑप्शन कौन सा है करके. तो वो वाले क्वेश्चंस आई विल स्ट्रांगली अर्ज यू टू अटेम्प्ट मे बी 8 और 10 ऑफ दोस क्वेश्चंस, सो दैट 50-50 के अंदर अगर उसमें से भी आधे राइट हो जाते हैं लेट्स से, देन यू बेसिकली गेट अ बिग बूस्ट टू योर स्कोर. तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के बारे में मत सोचना, ओनली थिंक अबाउट द क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट राइट. इफ यू आर वे बियॉन्ड योर असाइंड टारगेट, तुमको जो लगा था कि यार ये मेरा टारगेट होना चाहिए या ये इस क्वेश्चन का और इस टेस्ट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, ओनली देन यू थिंक अबाउट गोइंग बिग एंड काइंड ऑफ गैम्बलिंग योर वे थ्रू इट, राइट? सो वो चीजें वहां पे कर सकते हो. स्टार्टिंग में इसको मत सोच के जाना. स्टार्टिंग में जस्ट सॉल्व एज मच एज यू कैन ऑर्गेनिकली. उसके बाद ही मतलब यू कैन थिंक अबाउट इट, कंसिडर इट इफ यू आर प्लानिंग टू
गो एंड अटेम्प्ट बिग। एंड जीके सेक्शन के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू अटेम्प्ट एवरीथिंग इन द जीके सेक्शन। जीके ऑफ कोर्स परसेंटाइल के जो कंसिडरेशन होता है वहां पे भी, मतलब ऑफ कोर्स कैलकुलेशन होता है, वहां पे कंसिडर नहीं करते। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट जीके एट ऑल, गो एंड अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चंस, इवन इफ यू गेट अ लॉट ऑफ देम रॉन्ग, इट्स परफेक्टली ओके। यू जस्ट हैव टू गेट अ डिसेंट इनफ स्कोर जो बहुत नोटिसेबल ना हो, मतलब बहुत ही खराब है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देन इट माइट गेट नोटिस, मे बी 1 या 0 मिल जाता है। It's a sign that you have not prepared at all, or you don't are not really aware of anything that is going on around you. And of course, if you get an 18 or a 20 kind of a thing, मतलब outliers दोनों जगह पे you have to be a bit careful because you might be asked about that in interviews. But उसका तुम्हारे overall calculation में कोई लेना देना नहीं है, so that is completely beyond whatever we discussed now. ये जो calculation है, that is applicable only for the 3 sections that are going to be in part 1 of the ZAT, which are going to be the VA/LR section, the DM section, and the QADI section. If you have not understood this या कुछ और केस है जिसके बारे में you want to discuss, let me know in the comment section. I'll try to help you with your query, but otherwise it's fairly straightforward to understand. कितना इसको seriously लेना चाहिए वो अलग story है. I will not really suggest that to get bogged down because of the unattempted questions का पूरा situation, and just attempt it freely. जो आता है उसको करो, जो नहीं आता है उसको छोड़ दो, and then try to see what exactly is coming out of it. उसके बाद you decide what really needs to be done in the second round. So that is where you decide what needs to be done, not right now. So exam के time पे be flexible and attempt well, and you should be able to handle the entire unattempted question का negativity pretty easily after you have watched this particular video.